Yes, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Yes, welcome to the IP class, and I hope that you all are well. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, students from grade 11A, Ravneet and Harsambat. Then from 11B, Samanpreet and Parul. Yes, from 11C, Samardeep. Then we have Simrandeep, Krishna, Harshmeet. Yes, next is Lovepreet, Deepak. Yes, Deepak कैमरा ऑन कर लेना. And that's all I think. So today we have to work upon the new topic, that is there the dictionary. So earlier we have focused upon the topic that was list. Clear? So we worked for a few days on the list, and the list is an order data type, and the list is also mutable. So these are the few features we discussed about list, and we discussed few programs. Now coming back to the new data type, that is dictionary. So the very first feature of the dictionary is it is an unordered collection. So with regard to list, we have discussed that list is ordered data type, and here it is an collection of unordered items where each item consists of a key and a value. So basically here an item consists of two things, pair of two things. One is called the key and second is called a value. Now we need to understand what is the key here is and what is the value here is. It is mutable. So mutable means that the contents of the list can be altered, but the key must be unique. That is the one point that we have, that is the value of key must be unique. It should not be duplicate. We cannot have duplicate values in the dictionary. And the second is it is immutable. Key part is immutable, but the value part is mutable. So let's move to the example. How we create a dictionary. For creating the dictionary, we make use of these curly brackets. For set also, we make use of the these curly brackets. What is the difference between, how we will differentiate between a set and a dictionary? Because for set we also make use of the curly brackets, and for dictionary we also make use of the same. Yes, Simrandeep. Sir, the set is ordered, but the dictionary is unordered data type. Yes. Any other difference? So sets are mutable, but in dictionary we cannot change the value of change the key, but value can be changed. I guess Yes. so. और वैसे भी सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर सिंगल वैल्यू होती है. क्लियर? So here a item consists of two things. Here in case of a dictionary we have a key and we have a value also, but in case of the set we have a single value, standalone value. ठीक है?
So this is that is the dictionary consists of this curly brackets, and each item is separated from the other item by comma. So you can see here this is the first item, and this is the separator comma, then this is the second item. Clear? So each item from first and second one will get separated by the operator comma. Each item की एंड वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉलम. तो जैसे ये एक आइटम है मेरे पास, तो ये आइटम में ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज दी की, और उसके बाद कॉलन आएगा, और कॉलन के बाद जो होगा दैट विल बी द वैल्यू पार्ट. सो वन आइटम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज की पार्ट, सेकंड इज वैल्यू पार्ट. And how the key and value are separated? Key and value are separated by the term colon. And item 1 from item 2, they get separated with the help of comma separator. This is the how the values are separated. So passing value in a dictionary at the declaration is called the dictionary initialization. जैसे हम dictionary initialization करते हैं, similarly already we have focused on the concept of list initialization. ये list initialization क्या है? That when in the beginning we define the list with the elements, so we say that the list has been initialized. And similarly in the beginning when we will assign the items to the dictionary, we will say that the dictionary has been initialized. So we will perform certain examples of this one, like this is the first example that we have. So we'll be creating the such dictionary. So let's like see, already this dictionary is created here. Clear? And if I have to print the dictionary, I will use here print. Print, and I will pass here the term dictionary. So the very first step is, ये step क्या है? This is called dictionary initialization. Clear? Where I have initialized the dictionary, this is the name of the dictionary, and this is the first part. This is the item number 1. Item number 1 consists of first we have a key. Key का नाम क्या है? Subject. Value का नाम क्या है? That is informatics practices. Here the key is class, और जो इसको value assign किया that is 11. So we have to display this one. So with this one you can display the contents of the dictionary. And how the elements are accessed, so you can see here in this example also there are two ways are there. Either you can make use of the square bracket, dictionary name, and then square bracket, and in square bracket you have to give the key value. आपने q को यहाँ पे टाइप करना है, and you will get the respective value to that. Clear how this is done? Like we have here subject. I want to print the subject, and how I am going to do this? Dictionary, and then in square bracket I will mention the key value. Key value is subject. Just run, and you see here the subject and the corresponding value is get printed. Clear? और दूसरा मेरे पास है एक get method है to access the value, like the same subject I want to access. तो इसमें क्या है? dictionary dot get is the name of the method. So this is the method to access the any value from the dictionary. So I will just pass here the, जैसे अब मैं इस बार क्लास पास कर देता हूँ, तो ये क्लास है क्या? क्लास इज ए की. तो मैंने यहाँ पे जब भी हमने सर्च करना है,
कोई एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है तो वी हैव टू पास द की। की से हम वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, वैल्यू से हम की डिस्प्ले नहीं करवा सकते। एंड हियर द सब्जेक्ट वैल्यू इज, सब्जेक्ट ये वाला डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, वी शुड हैव रिटन हियर क्लास। क्लियर? तो क्लास के केस में ये क्लास को सर्च करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा दो। एक और जो पॉइंट था हमारे पास कि ये जो की वैल्यू है इट मस्ट बी यूनिक, और लेकिन ये जो वैल्यू पार्ट है इट कैन बी हैव दी डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट में भी 11 है, क्लास में भी 11 आ गया, बट की वैल्यू मस्ट बी यूनिक। की वैल्यू यूनिक क्यों होनी चाहिए? बिकॉज की के बेसिस पे हम सर्च करते हैं, तो अगर की वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो हाउ विल बी परफॉर्मिंग दी सर्च। ठीक है, तो the one more important point is that the key part must be in the dictionary, must be unique, this one. So let's go to the now slide part, and this is how you find the output here. तो पहले डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है, पूरी की पूरी सारी की सारी डिक्शनरी को, तो यू हैव टू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इनसाइड वी हैव पेयर ऑफ टू थिंग्स, वन इज द की एंड सेकंड इज द वैल्यू। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? की वैल्यू पेयर को हम क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। लाइक विद इन ईच आइटम की वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलम। तो एक आइटम कैसे बनती है? दिस इज द आइटम एंड इट कंसिस्ट ऑफ की प्लस वैल्यू। क्लियर? So that is the terminology with regard to dictionary we have, and let's move to the next slide. अब next slide में क्या किया है? We have the traversing. We have already did the traversing and iterating through a list. ये हमने last पढ़ा था, how to iterate over or how to traverse over a list. So the same concept is, जैसे हम लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं ऐसे ही हम डिक्शनरी को भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ट्रेवर्सिंग, ये ट्रेवर्सिंग होती क्या है? यस रवनीत। Sir, it is assessing all the elements of a list through loop. Yes, yes. So traversing means that accessing each element once, and for this we use the concept of loop over there. And now let us see here one example here is, and we'll implement this one on the so this is the now we have a dictionary. तो इस डिक्शनरी में क्या है? We have a few state names and corresponding state name है की के अंदर, और वैल्यू के अंदर है the capital of that very state. गुजरात with गांधीनगर, महाराष्ट्र with मुंबई, राजस्थान with जयपुर, and Bihar with Patna. So like this we have a list, sorry not a list but a dictionary, and the name of the dictionary is states and capital. So this is the name of the dictionary. Clear? Now इसके ऊपर हमने एक concept अपना जो है, that is what we are trying to do, iterating or traversing through the dictionary. तो ये हमारे पास डिक्शनरी है. This is the item, and here Gujarat is acting as a key and Gandhinagar is acting as a value. This is a key, this is a value. So this left part is called the all the keys, and these are the on right hand side I have the corresponding values to it. Now next I have started with the for loop. State is my control variable, and this is my sequence which consists of this states and capitals. So what I will do, I will print the state
क्लियर. सो स्टेट कंटेन्स दी, स्टेट इज ए वेरिएबल जो बेसिकली यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसकी सारी की सारी कीज को डिस्प्ले करेगा. ठीक है, like see, first we have Gujarat, then Maharashtra. This is not the case that they should appear in a sequence because we have said that dictionary is not ordered. तो ये किसी भी ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे आ सकती है these values. ठीक है, और अगर मैंने इसके साथ क्या है, I have to print ये, अगर मैं ये कैपिटल्स को भी प्रिंट करवाना चाहता हूं, सो इफ आई हैव टू प्रिंट ऑल दीज कैपिटल्स विच आर द पार्ट ऑफ द, ये वैल्यू पार्ट में आ रही है ये, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा मैं, आई विल यूज द नेम ऑफ दिस डिक्शनरी, दैट इज states and is capital. और स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा स्टेट. सो हियर द स्टेट इज एक्टिंग एज ए की and with the help of this key you will be able to access all these values. Or just run this one. So now you can see Gujarat and its corresponding value part is also coming. So state is containing the, this is a variable which is containing the key part, and this part is containing the value. So how to access the value? By mentioning, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, I have passed the key value पास कर दिया. ठीक है, so this is how I am going to iterate through the elements of the dictionary. और इसमें कई बार क्या होगा, कई बार आप देखोगे कि जितने ये जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के केस में कैसे आते हैं, पहले पहला एलिमेंट आता है फिर दूसरा एलिमेंट आता है, बट ये मैकेनिज्म जो है ये डिक्शनरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. Here you are finding that all the dictionary elements are coming in a sequence. जैसे गुजरात है तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र आ रहा है, फिर राजस्थान आ रहा है, बट दिस इज नॉट ए नॉर्म. ये कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉट इन ऑर्डर. क्लियर. सो समटाइम्स यू विल फाइंड कि कोई एलिमेंट पहले डिस्प्ले हो जाता है, कोई एलिमेंट जो है इट विल कम a bit later also. So now next, similarly we can basically modify the elements also. ठीक है, जैसे ये मेरे पास डिक्शनरी है. ठीक है, तो लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कोई कैपिटल का नाम चेंज करना चाहता हूं यहाँ, आई वांट टू मॉडिफाई. क्लियर. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर स्टेट विद द हेल्प ऑफ ए की वैल्यू एंड देन आई विल चेंज द वैल्यू. जैसे स्टेट्स एंड कैपिटल्स में मेरे पास है राजस्थान, तो मैंने इसकी कैपिटल अब चेंज करके क्या कर दिया है, इसको चेंज करके बीकानेर कर देते हैं. ये राइट हमारे पास तो नहीं है स्टेट कैपिटल को चेंज करना, बट वी हैव डिड दिस वन. सो ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे, पहले तो इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए दिस कैपिटल्स. क्लियर. तो फर्स्ट पहले मैंने डिक्शनरी को एक्सेस किया, फिर डिक्शनरी के अंदर मैंने ये की वैल्यू डाली, और मैं चेंज ये जयपुर को चेंज करना चाहता हूँ. आई वांट टू रिप्लेस जयपुर विद बीकानेर. क्लियर. सो दीज आर द स्पेलिंग्स ऑफ बीकानेर. सो मैंने क्या किया कि इसको एक्सेस करने के लिए ये मैंने की वैल्यू इसकी सप्लाई कर दी, और इसकी वैल्यू अब मैंने डाल दी जयपुर की जगह, अब मैंने डाल दी बीकानेर.
So if I want to look upon the changes, so how I will see the changes, print my new dictionaries, states and capitals. Just from this. अब आप देखो ये राजस्थान की जो कैपिटल है, इट हैज नाउ रिप्लेस्ड जयपुर विद बीकानेर. तो आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे अल्टर कर सकते हो. जैसे मैं राजस्थान में बिहार की कैपिटल चेंज करवा देता हूँ. सो बिहार is now having a new capital and let us say that is, as कौन बताएगा बिहार की नई कैपिटल किसको रखा जाए? यस, suggest some दसूहा. और दसूहा. दसूहा सर. बिहार का हिस्सा तो होना चाहिए उसको. थोड़ा रीजनिंग बेस्ड आंसर दोगे. नेम एनी सिटी ऑफ बिहार. चलो देखते हैं जनरल नॉलेज किसकी कितनी है. सर अजमेर. हाँ कौन सा? अजमेर. वो अजमेर राजस्थान में है. तो वैल्यू लिखनी है, आप इतना क्यों जीके को पूछ रहे? चलो जी. So let's move to the question and I have made it a new capital to this one. And now you see the capital of Bihar has been changed to Darbhanga. So basically हम यहाँ पे focus कर रहे हैं, that is how to access the elements of the dictionary. And we have stated in the beginning part that we cannot change the key part. की को हम चेंज नहीं कर सकते. की इज इम्यूटेबल बट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ द की. एंड की इन ऑल सर्कमस्टांसेस शुड बी यूनिक. कोई बता सकता है कि व्हाई द की शुड बी यूनिक? यस हर्षमीत सिंह. हर्षमीत पता है. वो कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरा. सर अगर हमारी की सेम होगी दो एलिमेंट्स की तो वो सर्च कैसे करेगा? हमें अप्रोप्रिएट आंसर तो नहीं हम देगा. किसी एलिमेंट को अगर जैसे लेट से मेरी, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है. अगर लेट से ये पॉसिबल, हम इसको अज्यूम भी कर ले ये पॉसिबल है, तो एक बिहार मैंने यहाँ डाल दिया, एक बिहार मैंने यहाँ डाल दिया, तो उसको क्या पता लगेगा मैं कौन से बिहार को यूज करके अपडेट करना है? क्लियर? सो बिकॉज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लिस्ट जो डिक्शनरी है इसमें ऑर्डर्ड भी नहीं है. अगर ये ऑर्डर्ड होती तो मैं बोल देता कि पहले वाले बिहार को अपडेट करना है. सो दिस इज नॉट द केस. क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज की पॉइंट्स विद रिगार्ड टू द डिक्शनरी. तो अभी तक हमने पढ़ा है ट्रैवर्सिंग थ्रू द डिक्शनरी, एंड सेकंड वी हैव डिस्कस्ड द हाउ टू अपडेट और मैनिपुलेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी. Now next we have how to delete the elements of the dictionary. So we have three methods with us. One is del method, second is pop method, and third is clear method. So we have three mechanisms. These statements are there to remove the or delete the elements from the dictionary. तो element कैसे delete होगा? जो भी हम की वैल्यू सप्लाई करेंगे उस की को वो क्या कर देगा, उस एलिमेंट को डिलीट करेगा. की भी चली जाएगी और उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी. मींस दैट एलिमेंट विल गेट डिलीटेड. तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? वी नीड दी की वैल्यू. तो जैसे अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे थे. नाउ लेट्स से नाउ आई वांट टू डिलीट हियर दी बिहार. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेल देन इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, and then I have to mention the state, that is the key value. Okay, and now you see here the Bihar with its
key as well as value both get deleted like this. So this is the first method that we have, del method. ऐसे del method को हम use करते थे list में, ठीक है जी. Similarly next we have a pop method. दो मेथड और रह गए हमारे पास, एक पॉप और दूसरा क्लियर. सो पॉप मेथड के अंदर क्या है, पॉप के अंदर फिर से मेरे को यही मेंशन करना है, बट हियर आई एम यूजिंग दी पेरेंथेसिस हियर. तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं. दिस इज द डिक्शनरी एंड देन इज नेम ऑफ द डिक्शनरी. डॉट पॉप इज द मेथड और पॉप के अंदर आपने सप्लाई करना है. लेट्स से दिस टाइम वी रिमूव द राजस्थान. Clear? And at last we again print the dictionary. So now you see here that this item has been deleted here, Rajasthan with the value Jaipur. And last method is the clear method. So as we have already applied the clear method, we know that whenever we want to delete all the items of a dictionary, we make use of the clear method. So now I will use here the clear method. So just you have to type here clear. So now you will see that in the end, now you are left with a blank dictionary. आपके पास क्या बचा? हमारे पास बच गया blank dictionary because all the elements of the dictionary have been deleted. तो जब मैंने सारे elements को delete करना है, तो तब तो मैं clear method का use करूंगा. But in other cases, या तो मैं अगर जिस particular element को delete करना चाहता हूँ, उसके लिए या तो मैं del method का use कर सकता हूँ या pop. तो ये आपके पास choice है that among these two methods, any of the method you can use. Clear? So next you have a list of few of the dictionary based functions. एक तो next है हमारे पास length function. तो length function वैसे ही है जैसे हमारे पास ये list में था. So you use here print length and the name of the dictionary is states and capitals. So this will give you the how many elements are there in the dictionary. So there are 4 elements in the dictionary. Then you look at the other function. Then we have this method is there, return a printable string representation of the dictionary. तो ये string dictionary को भी यूज करके देख लेते हैं. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये डिक्शनरी को ही प्रिंट कर रहा है. नथिंग न्यू इज देयर, दैट इज देयर इन ए stringable. Clear? So that is return a printable string representation of the dictionary. तो उसकी string में representation कर देगा. और थर्ड है हमारे पास टाइप मेथड. तो टाइप को भी हमने पहले यूज किया हुआ था. कोई बताएगा टाइप के बारे में, क्या होता है टाइप? टाइप मेथड रिटर्न्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. इस वेरिएबल की, ये मेरे पास अब क्या है, स्टेट्स एंड कैपिटल इज ए वेरिएबल टू मी, और उसकी वो डाटा टाइप बताएगा. तो इसकी डाटा टाइप क्या है? डिक्शनरी इज द डाटा टाइप. ठीक है. और कौन कौन सी डाटा टाइप होती है डिक्शनरी के अलावा? कौन कौन सी डाटा टाइप हमने स्टडी की है? तो नंबर. हाँ, नंबर में, नंबर तो वैसे एक ब्रॉडर डाटा टाइप है. नंबर की आगे फर्दर की लिस्ट. हाँ,
फर्दर की integer complex numbers. यस 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 यस, एक नंबर है और नंबर के अलावा टपल्स टपल्स हो गया, ठीक है, और List sets. लिस्ट सेट, और एक Random. नन डाटा टाइप भी है, एक हमारे पास बूलियन डाटा टाइप भी है। क्लियर? सो दीज आर दी डाटा टाइप्स दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, एंड लेट्स लुक एट दी, सो वी हैव फ्यू मोर फंक्शंस विद अस। ये क्लियर हमने पढ़ लिया। क्लियर क्या करता था? दैट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स। अगर हमने डिक्शनरी को कॉपी करके किसी और को असाइन करना है, सो रिटर्न से शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। ये देख लेते हैं शैलो कॉपी क्या है। कॉपी मेथड, so maybe this is used to assign that how to make a copy and assign it to others. Then we have this items. So items के अंदर क्या है कि that is it returns a list of dictionary items in a pair. ठीक है, अभी जो हमने डिक्शनरी की आइटम्स के बारे में पढ़ा था, so clear? So now you find here, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value, and this is combined together forms the item. Clear? So we can access the items like this in a dictionary. Then we can assign it as like set default value also. Default value basically hoti hai like whenever we want to assign a particular value to the key. Clear? So default is equal to none. This is the ये इसका basic criteria है. Clear? So we'll be also using this default को कैसे हम use करते हैं? जैसे basically default का use क्या होता है कि जब हम कोई अपनी साइड से value pass नहीं करते, so in that case automatically the default value comes into being. So we will take its example when it is needed. ठीक है, एक हमने ये किया था, ये एक हमारे पास अपडेट मेथड है। सो अपडेट से भी हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन एड्स डिक्शनरी टूज की वैल्यू पेयर टू दी। तो इससे भी हम अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लिस्ट वैल्यूज। तो अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू पार्ट को ही डिस्प्ले करवाना है, आई डोंट वांट द अदर पार्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यूज। तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये गांधीनगर, मुंबई, जयपुर एंड पटना, दीज आर दी वैल्यूज। और अगर मैंने कीज को डिस्प्ले करवाना है, सो यू नो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, दीज आर दी कीज। तो आप कीज को भी डिस्प्ले करवा सकते हो, आप वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवा सकते हो, और आप आइटम को भी डिस्प्ले करवा। अगर आपने ये पूरे के पूरे हिस्से को डिस्प्ले करवाना है तो हम यूज करेंगे आइटम्स। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ये की वाले हिस्से को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कीज। ठीक है जी, और अगर मैंने ये वैल्यू वाले हिस्से को प्रिंट करवाना है, आई वांट ओनली द वैल्यूज पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, सो आई विल यूज हियर वैल्यूज like this. So these are the different method that we have that we apply on the dictionary. So just go through these methods, try to test all these methods. Clear? And last we are left with a few programs. So we will discuss these programs in the next class. So my request to everyone is just go through the basics of the dictionary today, and tomorrow we will run a few programs based on the dictionary. ठीक है, नेक्स्ट जो था हमने जो प्रोग्राम शुरू किए हुए थे अपने, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी हैव इन द प्रैक्टिकल,
एंड जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है दैट इज देयर टू ईएमआई का प्रोग्राम है हमारे पास। तो कोई है स्टूडेंट जो ईएमआई को कैलकुलेट करके दे दे? सर ईएमआई वाला आई थिंक हो गया था क्लास में। नहीं, ईएमआई का हमने बस वो वर्ड मीनिंग डिस्कस किया था और ईएमआई होती क्या है वो डिस्कस किया था। ईएमआई का भी प्रोग्राम हमने डिस्कस नहीं किया हुआ। सो समवन टेकिंग द चार्ज। एक ना इसके अंदर फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम एज इट इज अप्लाई कर देते हैं। आई विल जस्ट लुक एट दैट फार्मूला दैट इज देयर इन ए पीपीटी। PC and then E drive SUA. So I think in basics of so let's move to the slide and sorry. So, yes. So this is the program where the formula and the steps for calculating the EMI has been described here. तो यहाँ पे उसने यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है और हम इसको यूजर डिफाइंड के बिना भी कर सकते हैं। दिस इज द प्रोग्राम एंड लेट्स से वी कॉपी पेस्ट दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें पीआरटी, ये हमें बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है। और जो ईएमआई के लिए फार्मूला है दैट इज द प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम के लिए है हमारे पास पावर ऑफ 1 प्लस आर रेज टू पावर टी एंड देन डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1 प्लस आर raised to power t minus 1. So let's try this one. एक हम प्रिंसिपल ले लेते हैं। Let's say principal amount is 10,000 रख लेते हैं। Rate is let's say 11% and let's say time is 3 years. ठीक है, तो इस बेस पे हमने ईएमआई की कैलकुलेशन करनी है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू देन यू हैव टू अप्लाई द पावर मेथड। पावर बेसिकली एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। पावर ऑफ 1 प्लस आर रेज टू पावर टी और इस ब्रैकेट को करना है 1 डिवाइडेड बाय, फिर से हमारे पास पावर मेथड 1 प्लस आर रेज टू पावर टी और इसके बाहर है -1। So this is the formula and you see here print the EMI is EM. So let's run this one. So there is a problem that R is not defined here. Oh yes, हमने यहाँ पे R use कर दिया। R तो हमारा
रेट है हमारा, रेट एंड टाइम है अवेलेबल। तो ये कॉपी पेस्ट करने का डिसएडवांटेज है। सो दिस इज द ईएमआई कॉस्ट। ईएमआई कॉस्ट कितनी बन गई हमारे पास ये, ठीक है, कि अगर हम 10,000 का लोन ले रहे हैं तो हमें ये अराउंड अबाउट 10,000 है कितने, ये तो 10,000 ही है। तो ये इतनी ईएमआई बन गई हमारी, काफी ज्यादा बन गई है ये ईएमआई। मे बी Sir, 1,10,000. नहीं, इतनी ईएमआई थोड़ी बननी चाहिए ये 3 साल में। ये तो 3 साल में मनी हमारी जो है वो डबल से भी आगे चली, 10 गुना हो गया, ये 10 गुना थोड़ी पे करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पावर ऑफ 1 प्लस रेट रेज टू पावर टी डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1। तो एक बार फिर से वहां से फॉर्मूला को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इसका जो अमाउंट है, ये देखो ईएमआई, इसकी ईएमआई कम आनी चाहिए, इसको 10,000। इसने इसमें आंसर नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, बट दैट इज द फार्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पावर ऑफ 1 प्लस आर रेज टू पावर टी एंड देन डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 1। सर एक बार सिंटेक्स शो करना। हाँ, एक यहाँ पे इसने r इज इक्वल टू r अपॉन 12 इंटू 100 भी किया है, वो आपने भी किया हुआ। यस यस यस। ये बेसिकली क्या होता है, r अपॉन 1200, ये बेसिकली है कि हम मंथली बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेट जो कैलकुलेशन होगा, रेट की कैलकुलेशन वो मंथली वाइज होगी, ठीक है। यू सी हियर, जो अभी कृष्णा ने पॉइंट बताया दैट इज फाइन। ये देखो यहाँ पे जो रेट है वो भी हमने इसको कन्वर्ट करना है, पहले रेट को कन्वर्ट करना है 1 मंथ बेसिस पे, और टाइम को भी कन्वर्ट करना है मंथली बेसिस पे, क्योंकि जो हमारी ईएमआई होती है वो हम मंथली बेसिस पे वी हैव डिसाइडेड टू पे इट ऑन द मंथली बेसिस, ठीक है। तो टाइम बन जाएगा हमारा, टाइम इज इक्वल टू टाइम इंटू 12 एंड रेट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो ये हमारा मंथली रेट बन जाएगा, 1 मंथ इंटरेस्ट रेट। तो ये पता होना चाहिए किस लिए, ये 1 मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए। सो रेट 11 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 12। 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लिखा होता है, 12 इंटू, देख लेते हैं, 12 इंटू 100। ये 100 है, मीन्स जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, और टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया, टाइम इज इक्वल टू टाइम बाय 12 था वहां पे। So into 12. सर हमने टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। इतने मंथ्स बनेंगे हमारे पास टाइम के, ठीक है। सो लेट्स रन दिस वन एंड यू सी हियर
द मंथली कॉस्ट फॉर EMI विल बी 327। इतने पैसे हमने मंथली पे करने। आप देखो कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन कम करोगे तो आपकी मंथली कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने इसी अमाउंट को पे करना है लेट से इन 6 years, तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट कम होगी। तो जितनी मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट कम होगी उतना टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और जितनी मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी तो उतने कम टाइम में आई विल बी एबल टू रीपे माई लोन आल्सो। क्लियर? सो दिस इज हाउ द EMI इज कैलकुलेटेड ओवर देयर। और EMI में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमने क्या किया, रेट को हमने मंथली में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथली बेसिस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और सिमिलरली टाइम के यूनिट को भी हमने, क्योंकि एक मंथ में एक ईयर में हमारे पास जो मंथ्स होते हैं दे आर 12, सो दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड टाइम इनटू 12। क्योंकि ये जो हम EMI कैलकुलेट कर रहे हैं ये मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं कि मंथली हमारे पास, तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि टाइम को हमने 12 के साथ क्यों मल्टीप्लाई। यस, सो यस समरदीप। सर हमने रेट को 2 बार लिया सेम वेरिएबल को, तो उससे कोई डिफरेंस क्यों नहीं क्रिएट हुआ? उसने मतलब जब फॉर्मूला बेटा सॉल्व किया तो रेट नीचे वाला। देखो एक्चुअली क्या है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 10,000 का लोन ले लिया, बैंक बोलता है आपको कि आपको 11% का इंटरेस्ट लगेगा, और टाइम आपको दे दिया 6 years का, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है EMI में, उसमें रेट कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस पे, तो उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा? देखो, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली। अगर 12% आप मंथली दोगे तो आप तो मारे जाएंगे। आप देखो, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, यू सी हियर, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, रेट को मैंने टाइम को भी कर दिया, और अब मैंने देखा, अब मैं किसी को बोलता हूं कि मैंने भैया आपकी EMI बना दी, तो आपने 10,000 का लोन लिया और आपने मंथली पे करना है, ये कितना बन गया, 1,10,000। बस 10,000 का लोन लो और मंथली आप 1,10,000 दे। ओ भाई, वो मेरी दुकान तो अगले दिन ही बंद हो जाएगी, कंपनी हमारी दूसरे दिन ही बंद हो जाएगी कि 10,000 का लोन लिया है और 1,10,000 मंथली पे करी जाओ। सो यू सी हियर व्हाई वी हैव दीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है कि हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा रेट डिवाइडेड बाय 12। और आपको पता है कि परसेंटेज को उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये टाइम कितना बनेगा हमारे पास, टाइम बनेगा हमारे पास टाइम इंटू 12, क्योंकि एक साल के अंदर हमारे पास 12 months वी हैव, so that will be the time and this will be the new rate of interest and this will be the EMI cost। और अगर आपने यही अगर EMI मंथ एक साल के अंदर ये अमाउंट पे करना है, तो आपका एक साल में आपको 883 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यस सर मेरा क्वेश्चन ये था, हमने एक रेट लिया 11 और एक रेट के इक्वल डाल के हमने वो सॉल्व कर दिया मंथली वाला, तो हमने दोनों रेट ही क्यों लिए हैं? मतलब उससे कोई डिफरेंस क्यों नहीं क्रिएट हुआ? सेम ही वेरिएबल हमने चूज किया रेट, जैसे एक रेट 1 ले लेते, एक रेट 2 ले लेते। नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ। जो EMI का फार्मूला है वो चलता है मंथली बेसिस पे। जो हमें इनिशियल, आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है साल के लिए, जो इनिशियल टाइम दिया है वो ईयर्स में दिया है। तो बेटा ये जो दो पैरामीटर हैं रेट एंड टाइम, इनको हमें EMI कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। एक चीज हमें दी होती है कि हमें गिवन क्या है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे ड्यू टू पुट दीज फिगर्स इनटू आवर फार्मूला, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी से पूछना कि अगर कोई लोन लेता है 12% पे, तो उसने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका इंटरेस्ट उसको पड़ता है 1 साल बाद। अगर वही इंटरेस्ट उसको 1 महीने के बाद पड़ गया तो वो तो मारा जाएगा बेचारा। एक महीने के बाद थोड़ी हमने 1 साल का इंटरेस्ट देना है, 1 महीने बाद तो हमने 1 महीने का इंटरेस्ट देना है।
So this calculation is done on the monthly basis. थोड़ा सा अगर आप इसकी background पढ़ोगे, so you will get the clarity. Clear? So any other question you have? Clear? So we will सर continue. मेरी हाँ जी, हाँ जी, सर अटेंडेंस लगा दो मेरी। हाँ जी, लगा दी बेटा, लगा दी। पारुल 12B। सर नो सिमरनजीत कौर 11th बी। सिमरनजीत कौर, कौन सा है आपका सेक्शन? 12। सर 11B। एक सिमरनजीत है और एक और है जसमीत, आपका कौन सा है? सर 11C। ओके, और एक हर साहिब रह गया, हर साहिब एंड हर साहिब का भी बी है। यस सर। ठीक है, और एक हमारे पास रह गया हरमिंदर। थैंक यू बेटा। क्लियर? सो वी विल मीट टुमारो टू डिस्कस दी। सर राहुल 11th B। काफी अपडेशन हो गई यार। Yes. So we will continue with the dictionary tomorrow. Thank you, Vada.